اچھا سن لیجیے بات یہ ہے جو تعلیم نبی علیہ السلام نے سن لیجیے نا بھائی. نہیں رہنے دو آپ جو سو. میں اپنی بات اب کروں گا ہی جاؤں گا. پیر صاحب پلیز آپ جا کر سو جائے، کل ملیں گے تو پھر بات ہوگی. ابھی وہ بھی بہت تھکی ہوئی ہیں، پتہ نہیں 12 گھنٹے ہو گئے ان کی براڈ کو چلتے ہوئے. نہیں کوئی بات نہیں، پیر صاحب کو بات کرنے دیں، ضیاء صاحب بھی بات کریں اور پیر صاحب بھی اور میری سسٹر. باقی پلیز سارے مائک میوٹ میں بس 2-4 سیکنڈ ہی لگیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس المؤمن بالطاعان ولا باللعان. ہم تو یہ تھا اس پہ عمل کریں گے نا، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کریں گے. بھائی جو لانتی ہے لانتی ہے، نہیں پیر آسکانی تو غلط بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے قرآن پاک میں لعنت اللہ علی الکاذبین. تو پہلے قرآن پاک کی مانے نا آپ. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ بات تو سن لیجیے. اللہ تعالیٰ خود جب جھوٹوں پہ لعنت ڈالتا ہے تو آپ کیوں نہیں ڈالیں گے؟ کی بات ہے، لیکن آپ کہیں پلانے کو لعنت کرو، پلانے کو لعنت کرو، ایسا نہیں ہے. نہیں فلانے کو نہیں، فلانے کو نہیں، یہ کذاب جو مرزا قادیانی اس کو کہہ رہا ہوں. اچھا میری بات سن لیجیے. نبی علیہ السلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے لیس المؤمن نبی پاک بالطاعان، صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ انہوں نے خود مسلمہ کو فرمایا تھا مسلمہ الکذاب. ہاں تو ٹھیک، لعنت کی تھی. اور مرزا بھی کذاب ہے، آپ بھی مانتے ہیں، تو لعنت کیوں نہیں پھر؟ اچھا نبی نے لعنت کی تھی مسلمہ کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کذاب کہا اور خود لعنت کی ہے. قرآن پاک سارا نبی پاک کی زبان سے نکلا ہے. ہاں تو ٹھیک ہے، ہم بھی ثم قرآن پڑھتے ہیں. نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی ہاں الکاذبین. بالکل، نبی پاک نے عملی طور پہ بھی یہ کام کر کے دکھایا، پڑھ کے دکھایا. ہم بھی پڑھتے ہیں نا. یہاں پر ہے دیکھیں اللہ کی دیکھیں وہ جس طرح سے شور کرتے ہیں نا. اللہ کی ہی ڈال دیں، اللہ کی ڈال دیں. لعنت ضیاء صاحب لعنت اللہ آپ علی تو سننے الکاذبین تو کہہ دیں. دیجیے، میری بات تو سننے دیجیے، لوگوں تک بات پہنچنے. حدیث پیش کر رہا ہوں. دیکھیں قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں. جو جھوٹے ہیں اللہ پاک نے لیکن ان پہ پیر لعنت کی آسکانی ہے. بھائی مومن لعان نہیں ہوتا. یہ اگر آپ اس بات پہ فٹ کریں گے کہ کذابوں کو بھی لعنت نہیں ڈالنی چاہیے تو آپ غلط ہیں. کہیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو کذاب ہیں ان کو بھی نہیں لعنت کرنی، بلکہ ان کو منہ لپیٹ کے چپ کر کے نکل جانا سائڈ سے کہ نہیں مومن لعان نہیں ہوتا. دیکھیں جو نبوت کا دعویٰ دار ہے وہ کذاب دجال ہے، بس اس سے آگے نہیں. اب ہم یہ ایک اپنا قولیہ قاعدہ بنا لیں، آہو لعنت کرو آہو لعنت کرو. تو نہیں نہ کر سکتے. چلیں ٹھیک ہے، آپ نے حدیث سننے نہیں دیا تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں ضیاء بھائی ایک بات سنیں گے؟ ضیاء ڈارلنگ بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بات نا بہت بڑھ چکی ہے. اس کو اتنی آسانی سے یہ 7 مہینوں سے جو سلسلہ چلتا رہا، پھر اس کو کسی نہ کسی جگہ پر اس کو پھٹنا ہے. اب اگر تو آپ پھٹ دیکھیں کے کیا ہو جائے گا؟ پھٹ کے یہ ہوگا کہ جو آئندہ مطلب آنے والے کم از کم وہ کسی نصیحت پر تو پہنچیں گے نا. بھائی کون سی کس کو نصیحت آپ دے رہے ہیں؟ کیا کرے کہ کیا اثر ہوگا اس سوشل میڈیا پہ بیٹھے جہاں آپ کس کو کیا نصیحت دے سکتی؟ دین کی بات کرنے والے کو جب تک اپنے خود کو ٹھیک، یعنی قرآن یہ بات فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ام سسٹر آپ کی بات صحیح ہے، لیکن یہ اس سے ککھ بھی فائدہ نہیں ہونا، جتنا مرضی زور لگا لے. یہ سوشل میڈیا آپ کس کا منہ کروڑوں لوگ ہیں یہاں پہ، لاکھوں لوگ ہیں، کس کا منہ آپ ادھر ہی انرجی اپنی ضائع کرتی رہیں گی. بات ساری زندگی بھی لگی رہے آپ ضیاء صاحب کی بات کو مانیں پلیز، یہ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کو یہ صحیح مشورہ دے رہے ہیں اور دل کے ساتھ ایمانداری سے آپ کو مشورہ دے رہے ہیں. 10 اور آ جائیں گے، 20 کو روکیں گے، 20 اور آ جائیں گے. بالکل ہر روز نیا سے نیا بندہ آتا ہے. ہائے ربا، میری بات سنیں تو ہم بھی یہی کر دیتے ہیں نا. نئے لوگ جوائن کرتے ہیں، کچھ ہماری سوچ کے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ مل جاتے ہیں، کچھ ان کی سوچ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. جی کتنوں کو روکیں گے؟ بات سنیں نا ضیاء بھائی، قرآن و حدیث کی بات نہیں نا پسند تو پھر اب بھی یہی کرتے ہیں کہ ان کی ماں بیٹوں کی تصویریں ہیں نا، ہم بھی لگا دیا کریں گے. وہ گالیاں نکالتے ہیں، ہم ذرا چنگے تو پھر کیا فرق رہ گیا؟ آپ میں اور ان کے درمیان کیا فرق رہ گیا؟ مطلب کہ یا تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کی طرح ماں بہن کی گالیاں دینی ہے، تصویریں لگانی ہے، یا تو یہ کرنا ہے، تو یا پھر آپ نے کرنا ہی کچھ نہیں. بھی آپ سمپلی جو کر رہی ہیں وہ کیوں نہیں اپنا کرتی رہتی؟ دینے سے کیوں ہم کو جو کر رہی ہیں وہ آپ چپ کر کے کریں. تو آپ آ کر ہم کو بند کرتے ہیں، ان کو بھی جا کر بند کریں نا.
आप उनसे कहे ना। नहीं, आप भी बंद कर लें, आप भी बंद कर लें, बंद करें आप भी ना। आज के बाद कुरान हदीस नहीं पढ़ना आपने, लौटंगो तस्वीर तुसी भी। तो कुरान हदीस के साथ हद बात होगी करें भैया, ना। आप ऐसे बातें कर रही हैं। आप जाए ना, जाके रोक अपनी लें, भी तस्वीर जिस भेज दिन देते रोक हैं। लें आके, तो ज़िया जिस भाई दिन आप इनको रोक लें, मेरा नाम बदल देना आके। जा रोके हैं, दिखाएं मुझे रोक के, प्यो भी ना पर्चे करवाएं, दिखाते, ज़िया इन साहब पे मैं भी केस देख रहा करवाएं, हूँ। इनको मारे पिटवाएं। यार तो अगर ये हमने रोक लिया इनको, आपने मेरा नाम बदल देना। मेरी बात सुने, फिर अगर उसके यहाँ बाद पर भी हद हो गई मैं है। आपको ये बात कह रही हूँ कि इन्होंने प्यो ने भी नक ना रगड़िया तो तुसी मैनू कह देना। ए जेल भी जड़ा आकाश है, इसका भी एड्रेस, हर चीज मेरे पास मौजूद है। शाहिद का सारा कुछ मेरे पास मौजूद है, खाजा का सब कुछ मेरे पास मौजूद है। कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसका मेरे पास डाटा ना हो और उनके घर बार का मुझे पता ना हो। और मेरे पास रिकॉर्डिंग, मेरे पास हर चीज, जो इन्होंने गालियां दी, मेरी तस्वीरें लटकाई, ये इंग्लैंड तक की पुलिस में जाएगी, मैं साइबर क्राइम के पास जाऊंगी, मैं मतलब जो अपनी पाकिस्तानी यहाँ पर कैनेडियन, मैं उनके पास जाके ये बात कहूंगी। और मैं अपनी अपनी वीडियोस भी दिखाऊंगी कि मैंने कभी किसी को टारगेट नहीं किया। ठीक है जी, ये ठीक बात हो नहीं गया, है, आप मेरे जाएं, सारी- आपको पूरी मुझे इजाजत है, मेरे आपका लोगों राइट ने है, इसकी आप तमाम जाएं। रिकॉर्डिंग मुझे बस इस रिजल्ट में- चाहिए है। जिस दिन आप इनको रोक लें उस दिन आपने मुझे बता देना, मैं जहां भी मिलूँ, इधर ही कहीं ना कहीं मिल जाऊंगा। उस मेरी दिन बात- मुझे अभी आपने भी नहीं बताना है कि रुकेंगे। देखे मैंने इनको मेरी रोक बात लिया, सुने, और कोई महीने के बाद मैं आपसे पूछूंगा भी जो इतना टाइम आपने जाया किया, इससे क्या मिला है आपको। मेरी बात सुने, रुके ना वही टाइम आप अपने ना तबलीग रुके, के काम में मेरी बात लगाएंगी तो उसका कोई फायदा हो जाए। रुकना या ना रुकना एक अलग बात। हम कादियानियों को मुसलमान तो नहीं कर सके, लेकिन हम ये तो कर सके ना कि जो कर रहे हैं वे कर रहे हैं। कम अज कम साइबर क्राइम के पास इनके नाम तो चाहिए, इनको कोई पकड़ने वाले धकड़ने वाला तो हो। इनके जब हमारे इतने असर सूख है पाकिस्तान में, इनकी लगाई, इनकी ECL में नंबर डाले जाएंगे, पाकिस्तान घेरे जाएंगे वहीं पर ही। जब हमारे असर सूख फिर किस काम के? अब ये भी तो सोचे ना। सिस्टर आपको पता है उन्होंने क्रॉस करवाते हैं, इनकी शिकायतें लगाई कि ये या भाई को उन्होंने कितना एक बंदा बात करें, एक बंदा बात करें, सबकी समझ नहीं आ रही है। प्लीज रिक्वेस्ट है कि एक बंदा बात सिस्टर, करे, एक को मौका दें। मैं कादियानियों की तो बात नहीं कर रहा आपसे, उनके साथ आपको जिस तरह दिल करता है आप निपटे। मैं सिर्फ जी जी बात ये कर आपकी रहा हूँ आवाज कि ये जो मुसलमान भाई ज़िया भाई आपकी आवाज काट रही है। जो गाली गलौज आपका कर रहे हैं या इस तरह का बुरा भला कर रहे हैं, इनको अगर आप रोकने की कोशिश करेंगी तो ये टाइम का वेस्ट। मैं इनकी बात कर रहा ज़िया भाई आप वो फिर उनको समझा देना। नहीं ज़िया भाई फिर आप उनको समझाएं। नहीं 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 समझाएं उनको, हम खुद समझाएंगे उन्हें। ये क्या तरीका हुआ भाई? हमने तो नहीं, जो करना सी कर लिया। होना मेरी चाहिए। बात सुने, अब मैंने अभी बात बताई कि जब चौधरी की बेटी निकल गई थी ना, यही था ना कि लोग कहेंगे इसकी बेटी निकल गई, लोगों ने समझ लिया, कहता हूँ मेरी बेटी भज भी जाएगी तो मैंने कोई फर्क नहीं पैदा। ठीक हो गया, अब इन्होंने लगा ली, जो करना था कर लिया, ठीक हो गया, इन्होंने तो लिया कर, मुझे तो फर्क कोई नहीं पड़ना। मेरी फैमिली को, मेरे तमाम लोगों को पता है जो कुछ हो रहा है, सब कुछ पता है ना। यही डर होता है ना कि हो ये ना हो जाए, फलाना हो जाए। मेरे लोग मेरे साथ हैं, मेरे फॉलोअर्स मेरे साथ हैं, तो मुझे तो कोई परवाह नहीं है, मुझे तो कोई परवाह नहीं है। ये डिपोर्ट होंगे जो भाग भूग के आए हुए हैं, ये जबरू खान जैसे जो बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं रातों को, करवाओ इनकी कंप्लेनें और दिखाओ भी ये कुछ करते हैं आके लाइवों के ऊपर मुसलमान बन के। कौन है ये? फिर पता चलेगा कि इनमें खुद कितने कादियानी बन के जो है ना रिफ्यूजी लेके बैठे हुए हैं। ये अब चीज जो है ना ज़िया भाई अब रुकने वाली नहीं है, ठीक है। अब जो इन्होंने करना था वो 7 महीनों से करते हुए, मैंने ये लास्ट टाइम था, मैं एक चीज का इंतजार कर रही थी। अब ये नहीं रुक सकता कुछ भी। अली शेर गुजर देखने नहीं आया, वो पूरा दिन हो गया नहीं आया। कह रही है एक मिनट आप दूसरों के बारे में कह रही है, आप खुद तो अपने गिरबान में जाग के देखें आपके बारे में कितनी, अगर कैनेडियन अथॉरिटीज को पता चल जाए आपको नहीं अंदर करेंगी? मैंने क्या किया जी? जो है कितने आपके ऊपर मुझे बताएं मैंने क्या लगे किया, हुए हैं? मुझे ये बताएं मैंने क्या किया? आपके ऊपर एलिगेशंस लगे हुए हैं कि नहीं कैनेडियन मेरे पे गवर्नमेंट? कोई एलिगेशन नहीं है। तो आप लो खुद गूगल, आप खुद कहती है, कल आप रात को कह रही थी तलत की ब्रॉड पे, मैं आज से 14 साल पहले की 13 साल पहले की बात कर रही हूँ। 13 साल पहले की, 10 साल पहले की बात मेरा है, मसला हल हो गया था।
नहीं जी। हल हो गया था कि जो भी हो गया था, फिर भी अब्रॉड पे तो आके जो मैं है वो बता आप रही ये हूँ बात कि कर मैं रहे 13 हैं। साल पहले तो जब टिकटॉक आप दूसरों आई को भी नहीं थी। कहेंगे तो दूसरे के आपके बारे में नहीं कहेंगे कि वो रेफ्यूजी बन के आए या जैसे भी बन के आए, मैं आप तो खुद वहां भी तो इसी रिफ्यूजी तरह बनकर करिए। आई, ना मैंने कभी रिफ्यूजी क्लेम किया, ना मैंने कादियानी का किया। मैं यहाँ पर मेरी कोई क्लास में अपने लैंडिंग पेपर अभी यहाँ पर लगा देती हूँ। जिस दिन मैं आई हूँ मुझे एयरपोर्ट से एज अ लैंडिंग पेपर में यहाँ पर वो हुई हूँ, मैं लगा देती हूँ यहाँ पर। हुक्म करे, कोई जरूरत नहीं लगाने की। नहीं सफाई नहीं हुक्म देने करे की मुझे यहाँ पर। बस जियाद बताया भाई किसने यार और ये दूसरे भाई यार अच्छा जी, कि इनसे अच्छा हवा भाई, बचा सिस्टर करती हो, आप क्यों जरा उतार देती मेरी हो भाई मेरी उन्हें? बहन मेरे भाई मेरी बात तो सुन ले। मैं पहले भी आपकी उम्मे लाइव पे आया था, मैंने कहा सिस्टर था एक एक बंदा आप बात करे, कंटिन्यू सारे ना बात करें, किया करें। सारे बात करते हैं तो किसी कंटिन्यू की बात करें, भी आप समझ जारी नहीं रखें आती इस है। काम को, असि जाके मिर्जे ਨੂੰ ਟੰਗਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, शाबाश। नवा मिर्जा है मार्केट के अंदर जनाब, ये सिख बन के ਆਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਤ ਮਿਰਜ਼ੇ से ਟੰਗਣ ਲੱਗੇ, दसदा ਤੁਸੀਂ बंदा। ਲੜੋ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਲੜੋ ਸਿਰ ਪਾੜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਮਿਸ ਕਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਫਿਰ। ਕਾਕਾ ਜੀ ਮਰਜ਼ਈ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਜ਼ਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਗੇ ਕਾਕਾ ਜੀ मैं सिख क्यों बन के फिरदा? मैं हाँ मरज़ई ਤੂੰ में इतने ਸਿੱਖ ਬਣ आके ਕੇ लाइव से ਆਇਆ कह ਹੈ, रहे हैं, ਤੂੰ लेकिन ਝੂਠਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਕਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਟਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਐਕਸ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਨਸਲ ਚੋਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸੇ ਨਸਲ ਇਹ ਚ ਹੈ, ਮਿਸਟਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਐਕਸ ਦੀ ਹੈ, ਨਸਲ ਮਰਜ਼ਈ ਚ ਆ। ਹੈ। हाँ जी, देखिए देखिए हम अगे अगे काम शुरू हो गया, रियाज साहब देख लिया, अगे अगे काम शुरू हो गया, एक दूजे से बल्लेबाजियां करनी शुरू करती हैं इन्होंने। हरभजन सिंह बन के आया सी साडी बराड़ से झूठिया, अगर सबर करना है तो सबर करके तू अगर नहीं मर जाए। मिस्टर एक्स मैं तेन जानदा चंगी तरह, बरखुरदार बात आ जा। ਕਰੋ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਬੜਿਆ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਢੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣੀ देखो हुण मेनू म्यूट भी करनगे, हुण तुसीं मेनू म्यूट भी करना है, हुण तुसीं मेनू ਇਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਛਤਰੌਲ ਕਰੋ, ਮਿਊਟ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਥੇੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੰਦੀ ਕੌਮ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਹਰਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਨਾ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਡੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹਰਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਦਰੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਊਟ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਨਸਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਊਟ ਕਰਿਓ। ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਨਵਾਸੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਬਰ ਤੇ ਕਰ ਜਾ, ਸਬਰ ਤੇ ਕਰ ਜਾ ਭਰਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਥਾੜੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂ ਕਜ਼ਾਬ ਤੂੰ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਜ਼ਾਬ ਤੂੰ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ ਹੀ ਨਾ ਬਰਾੜ, ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇੱਥੇ। जी मेरी बात सुनिए, जी एक सेकंड मुझे एक सेकंड जरा मुझे बात कर लेने दें इंसाफ से। आपको मेरी ब्रॉड नजर आती है तो आपको बाकी जिनको आप मुसलमान कहते हैं वो आपको नजर नहीं आई ब्रॉड? मैंने तो सब कुछ नजर आ रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ आप मुझे कब से जानती हैं? आप मुझे कब से जानती हैं? आप मुझे बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ। आप जानते हैं, आपको समझा रहे हैं कि आप ना करें, आप अपनी तरफ से ना करें, छोड़ें इनको। आप देख रहे बार बार हर कोई आके आपको बता रहा कि आपके ऊपर एलिगेशन लगे हुए हैं, ये आपकी तारीफ कर रहे हैं सारे, और बातें आगे से आगे बढ़ रही हैं। मेरी बात सुने, मैं अपने घर बैठी हूँ, मेरे पे क्या एलिगेशन लगे? बकवास कर रहे हैं मेरे साथ। मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं आपको सही बता रहा हूँ, लोग आपके चल रहे हैं। मेरे जो मर्जी करें, आप कौन होते हैं? देखा आप बदतमीजी पे उतर आई हैं। आपको मैं आपसे ये नहीं इत्मीनान करता था, मैं ये उम्मीद नहीं थी आपसे कि आप इस बदतमीजी पे उतरेंगे। अब मेरे से कोई मुसलमान ये उम्मीद ना रखे, अब कोई मेरे से ये उम्मीद ना रखे कि उम्मे रुबाब वही है जो 7 महीने पहले आप लोगों को बर्दाश्त करती रही है। अपनी जुबानों को अपने मुंह के अंदर रखे। 100 दफा चलो फिर ठीक है, वरना मैं आपकी जुबान निकाल के आपके हाथ में पकड़ा दूं। ठीक है, माशाल्लाह आगे की तरह कैमरा ऑन करके आओ और खूब लगाओ, लोगों को बढ़ाओ चढ़ा के लगाओ और खूब ना जी सब ऊपर नीचे करो सबको। तुम अपनी बेटियों को लगाते हो तो तुम दूसरों को भी यही बकवास करते हो, हरामजादे। बकवास कर रहे हो तुम कुत्ते की तरह। एमआई खान साहब आप क्या कर रहे हैं? कुत्ते की तरह भौंक रहे हो, जाके किसी फिरके को गालियां दे रहे हैं। तुम आयो देखें उमर बाप, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, आपको मैं वार्निंग दे रहा हूँ। आप नहीं मुझे जानती मैं क्या हूँ, खुदा कसम मैं अंदर वड़ के ना चीर देना उन्हें फड़ के बंदे नूं। तेरी बूथा पड़ के तेरा बूथे दे उत्ते ना जुतियां मारांगी, तू याद रखी, बगैरत इंसान, कुत्ती दे बच्चे।
से सब देखे बात फिनिश करें, ये बात इसको बढ़ाने वाली है नहीं, जो कि आप इसको खामखा जो है लेके जा रही है इधर उधर की, मारने की जरूरत नहीं है। जो आप काम करती है वो आप काम करें, जो आप कुरान मुझे पहले ये बताइए, तिलावत करती है पढ़ के सुन ले पहले मेरी बात। मुझे ये बताइए आप कि आप अभी तशरीफ लाए थे, ठीक है, और आके कि जी मेरे एलिगेशन और मेरे फलाने ये बकवासें जो है आज से 13 साल पहले की, जो हाँ, तो मेरे 13 मियां साल और पहले की कादियानी कि ने जब की भी मिलकर है की वो तो थी, कल हमें और पता चला इनके है। मुंह के ऊपर जूते पड़ गए थे, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने मैं बोला है, जी बात सुन ले, देखो एक मिनट बात सुन ले। कल आपने खुद जो है वो अपने मुंह से ये सारी बातें कही है, ठीक है ना, हमको कोई कहने की जरूरत कुछ भी जी नहीं। मैंने 13 साल पहले का बता 13 रही साल थी। जी जी, रिकॉर्ड सबका सबके पास है, पुलिस के पास भाई अब भाई मुझे मैंने भी एक बकवास मिनट करा। मौका रिकॉर्ड दे होते दे, हैं। मैं मेरी भी बात एक सुन ले, मैं ये बात नहीं कर रहा। भाई मुझे भी एक मिनट मौका दे दे, मैं भी एक बात करना चाहता हूँ। कब से बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, मुझे भी एक मौका दे दे एज अ इंसानियत। आप ना बैठे भाई, ना बैठो, ना चले जाओ। बैठे, आप चले जाएं। सर बात ना बढ़ाए, ना बात बढ़ाने की है, बस छोड़े, रफा दफा बात करें। बढ़ाने की देखे है ही हम नहीं है, मैं नहीं, एक ज़िया सिर्फ भाई भी बात आए थे करना यही चाहता हूँ कहने। एज अ इंसानियत के नाते। तो आप सारे लोग बात सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते? हाँ जी, क्या सुनानी है आपने, बात बताएं। मैंने देखें हतीजा मैन या जो भी बैठे हैं यहाँ पे, आपके बारे में मैं उस दिन आपकी लाइव पे आया था और मैंने आके कहा था, मैंने आके उस दिन भी लाइव पे, आप मुझे जानती हैं, उस दिन भी मैं आपके साथ मेरी बात हुई थी। मैंने एक वुमेन की मैं इज्जत करता हूँ, जो भी उस वुमेन की बेइज्जती करता है, जैसे पर्सनल लाइफ है, जो मर्जी है, मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता और ना मैं किसी दूसरे के बारे में कुछ जानता हूँ, जो भी यहाँ पे ब्रॉड पे बैठे हैं। एक जो भी इंसान मैंने आया किसी यहाँ की पे, बहन का सौदा कर लिया है, मैंने किसी की बहन बेच दी है, मैंने किसी की माँ बेच दी मेरी है। बहन, बात तो तहम्मुल से ठीक है, सुने, मेरी पहले बात तो सुन आप लेना, बहन नहीं मेरे बारे आपने में किसी बेची ने क्या है, बात आप करनी। आपको बस सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि देखे किसी और को ना कुछ कहने की जरूरत। देखे वो जो आपके पहले हुआ वही बात अब तक चल रही है, वो अगर आप चुप कर जाएंगे तो और कोई नहीं बोलेगा, तो आपको सारे आपको समझा रहे हैं। मौका तो दे दें, एक ब्रॉड का तरीका तो समझें, एक ब्रॉड का तरीका तो समझें कि जब दो बंदे बात कर रहे हो, मेरी बहन आप मेरी बात सुने, अगर आपने पहले पूरी करनी है तो आप अपनी पूरी बात रखें। आप 5 मिनट लें, 10 मिनट लें, अगर इस ब्रॉड वाले इजाजत देते हैं। देखिए मेरी बात सुने, मुझे किसी मशवरे की जरूरत नहीं है। नहीं मेरी बहन, मैं अपनी मशवरा देना ही नहीं अपनी चाहता। लाइफ के बारे में बेहतर जानती हूँ, मुझे क्या करना है। मैं एक किसी सेकंड रिलीजन मेरी पे बात नहीं जाना सुने, चाहता, मैं इंसानियत। एक सेकंड मेरी बात सुने। मुझे आपने कोई इल्मी बात करनी है, मोस्ट वेलकम। मेरी जात के ऊपर बात करनी है, मेरा जो दिल चाहे मैं करूं, मेरा जो दिल चाहे मैं ना करूं। मेरी ब्रॉड किसी की पाबंद नहीं, किसी ने आना है मोस्ट वेलकम, नहीं आना मत आए, ठीक है। मैं कभी किसी की ब्रॉड पर जाकर उसको सजेशंस नहीं देती कि तुम ये करो और तुम वो करो और तुम ये और तुम वो। मुझे किसी को कोई हक नहीं है कि वो आकर मुझे बताए कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सिंपल, आगे बात करें अब। जी बहन, अब यही इस बात का आंसर देते हुए मैं सिर्फ आपसे इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपने मेरे से पहले भी बात की, आप मुझे 1-2 दफा बात हुई, आप मुझे जानती हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोई और अगर आके बात करें तो उसको म्यूट कर लीजिएगा। जो आपने बात की है मुझे उससे कोई एतराज नहीं है, आपकी मैं नहीं करूंगा, कोई और आगे करता है। मुझे ये है कि आपकी अपनी लाइफ है, खुदा ताला ने आपको पैदा किया, अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया है, जिसको भी आप। तो अब बात क्या करनी है आपने? तो मैं यही बात करने आया हूँ कि कोई भी अगर आपके बारे में बात करता है उससे आप डीमोटिवेट ना हो। जो आपकी ब्रॉड चल रही है आप उसको चलाएं, आप उस ब्रॉड को लेकर मेरी ब्रॉड के ऊपर बात करें, आप अपनी बात करें ना। कोई बात आपकी है तो वो करें, मेरी साथ में यही तो बात की है। मैं आपकी मर्जी से तो नहीं चलूंगी। नहीं, आप मेरी मर्जी से ना चले मेरी बहन। मैं ये कह रहा हूँ कि 1 घंटे से मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं यही देख रहा हूँ कि कोई एक बंदा बात करता है, उसका कोई दूसरा क्वेश्चन देख रहा होता है। मेरी बात सुने, देखें आप तो नहीं जवाब दे रहे, मेरी ब्रॉड में जवाब दे दूं ना दे दूं ये मेरी मर्जी के ऊपर है ना। मैं आपके घर जाकर आपके ऊपर हुकूमत तो नहीं कर सकती। मेरी बहन यही तो मैं कह रहा हूँ ना मेरी बहन, प्यारी बहन, मेरी बात तो सुन लें। अगर आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ या आप मुझसे क्वेश्चन करें, मैं जवाब देना चाहता हूँ उसका, अभी मेरा जवाब अभी स्टार्ट ही मैं करूँ तो कोई तीसरा बंदा चौथा बंदा उठ के बैठ जाए तो वो आपसे जवाब नहीं कर रहे। जो लोग जितने भी सुन रहे हैं उनको क्लियर नहीं होती है एक चीज। तो मैं ये चीज चाहता हूं कि कोई भी ब्राड हो, चाहे आपकी हो कोई भी हो, तो वो एक बंदे के क्वेश्चन को क्लियर करके आगे जाया करें। मेरी बात सुने, देखिए अगर आपको नहीं समझ आती ना मिस्टर एक्स, आप ना आया करें। आपको जहां समझ आती है वहां समझ लिया करें। ठीक है बहन, ठीक है बहन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको
सारा कुछ दे मेरी तरफ से बहुत ये। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी बहन, जी बहन। हाँ जी, ला नबी आबादी, आप फरमाएं क्या कहना है आपने। आलिया मलक। जी अली मलिक साहब बोलें। म्यूट ऑफ करो। अनम्यूट योरसेल्फ। वो तो इनकी म्यूट लगी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सिस्टर। हाँ जी, मैं वैसे आपको अली को बात कर ले रहे थे जी। वैसे सुनती रहती हूँ आपको, नीचे बैठ के आज ऊपर आपने उठा लिया तो अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। थैंक यू जी अहमद सुल्तान साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं सुन रहा था और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो इस तरह के जो ये ब्लैक मेलर एटीट्यूड है, बुली बनकर जो होते हुए आती हैं, इनको पता नहीं है कि ये पाकिस्तान थोड़ा जो होता वो है, ये कनाडा और यूके, यहाँ पे किसी को आप इस तरीके से बुली थोड़ी जो होते वो कर सकते हैं, आकर समझा रहे हैं कि ये कर लो। जी, असल में ठीक है, हमें ये मेरा पता है। जी मेरा ओपिनियन जो थी वो ये जो थी वो है ये कि ये बिल्कुल उस तरीके से जिस तरह वो बरादरान यूसुफ नहीं है तो असल में जो था वो ये कंपटीशन से, मेरा अपनी ओपिनियन ये है कि कंपटीशन से घबरा जाते हैं जब ये देखते हैं हर 1-2 महीने बाद इनको दौरा पड़ता है, फिर दौरा पड़ के जो होता है वो यहाँ पे आकर आपको मशवरे देने जो होते हुए आ जाते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आती। अहमद जी सुल्तान साहब, जी जी गुज़िश्ता 8 दिन से ये जी जी मुख्तलिफ औरतों की, मेरी मुख्तलिफ लोगों की बैड गालियां और ये सब कुछ जी कर रहा हूं। जी मैं जी किसी की ब्रॉड पर नहीं गई, मैंने किसी को नहीं कहा कि आप इसको बंद करें या ना करें। जी, और ये सारे हमारे अपने लोग हैं, मतलब जी, अपने अपने लोग जी ठीक हो अपने गया मुसलमान भाई। जी। जी जी अब जी इनको कोई मुसलमान कहे, मेरी जी नजर में तो एक मुसलमान ऐसा नहीं होता। मेरी नजर में मुसलमान का शेवा, उसकी हालात जिंदगी जी बड़े खूबसूरत होते जी जी हैं। बिल्कुल अब जी जो कुछ ये कर रही है, जी मुझे कोई एतराज नहीं है, करते जाए जी, ठीक है। जब मैं तो इनके पास रोकने के लिए नहीं गई, जी जब मैं कर रही हूँ तो मुझे आप कह रहे हैं कि आप ये ना करें, आप जो करेंगे वो करें। मेरा जो दिल चाहता है मैं करूं, बिल्कुल आई एग्री जी जी ठीक हो क्या। आप जी होते कौन है मुझे ये कहने वाले कि आप ये करें और ये ना करें। जी जी आप जी उससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप उससे जी ज्यादा जी काबिल है, आप उससे ज्यादा अकल रखते हैं, तो साबित करें आके। बिल्कुल ऐसे मैंने ही तो जोता आपको हूँ गालियां जी देते देखा है, मैंने तो आपको बगैरती करते देखा है, मुझे तो इसके अलावा कोई नजर नहीं आया कुछ आपका। जी वो ना फारसी में कहावत है गुरगाशित, ये लोग जो होता है मेरे ख्याल में गुरगाशित जो होते हैं वो बन गए हुए हैं, वो बैठ के जो होता है वो कोई और नहीं मिलता तो अपने लोगों को ही काटना शुरू कर देते हैं ये तो इनका माइंडसेट जो होता है वो मेरे ख्याल में खराब हो गया हुआ है, और इनको अखलाकी तरबियत की जरूरत है। मतलब ये इससे पहले कि ये दूसरे लोगों की बातें करें, इस्लाम की बात करें, पहले अपना करेक्टर जो होता है वो दुरुस्त करें। बस मैंने यही कहना था। थैंक यू। जी, अब ये देखो मिस्टर एक्स, आप खदीजा भी हैं और उम्मे भी, क्या बात है भाई। एक नया ड्रामा शुरू करने लगे हैं ये। इनको सिर्फ इग्नोर किया जा सकता है, इनको इग्नोर कर दें ये बस। जानबूझ के करते हैं, इनका सब मिली भगत है। जो लोग सही मानों में रद्द कादियानी करते हैं उनको बर्दाश्त नहीं करते, हकीकत ये है। जी गुलाम रजा साहब अस्सलाम वालेकुम, जी फरमाएं। है जी गुलाम रजा। जी मौला अली, जी मौला अली अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी बस जी भगदड़ मची है, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं नहीं, कि कोई हम बहुत जो मर्जी किसी के साथ करें, ठीक है, नहीं, उसमें कोई कोई आपको मसला नहीं होना चाहिए। जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरा काम करता है तो उसके आपकी ऊपर वजह से जी मुझे गालियां निकाल रहे हैं कि कल मैंने आपको अपनी ब्रॉड पे बिठाया हुआ था। मैंने ये क्या, मैंने कहा मेरी मर्जी, आप उसको बेटा कह रही थी। मैंने कहा जी मेरा बेटा है, मैं उसको बेटों की तरह, आपको जो दिल करना है जो आपका करना, ना मैंने रुकना, ना मुझे किसी के रुकने की जरूरत है, ना मुझे मुझे किसी भी की ये कह रहे थे, मुझे भी ये कह रहे थे कि तुम्हारी माँ ऐसी है तो तुम भी इसलिए ऐसे। मैंने कहा यार क्या बातें आप लोग करते हैं पूरा अपनी दिन तरफ से। बेटा 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 ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਫੇਰ ਤੋ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਫਰਾ ਕੇ ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ।